पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड माइग्रेशन. In this, we will discuss rest part of the lesson. Trends in population growth. अगर हम देखते हैं ट्रेंड्स तो आपको बड़ा डिफरेंट ट्रेंड्स लगेगा. ट्रेंड्स, द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 6 बिलियन. ये पुराना डेटा है थोड़ा. अब इस समय जो है मोर देन 7 बिलियन हो गई. अब 8 बिलियन के मार्क पर हम पहुंचने वाले हैं. तो ये वो करना है. ये पॉपुलेशन है, चेंजिंग फीचर रहते हैं इसके. In the early period, population of the world grew very slowly. It is only during the last few hundred years that population has increased. Figure 2.3, this one we will discuss. Tell us the story of population growth after the evolution and introduction of agriculture. ये लाइन मंडला करते हैं. After evolution and introduction of agriculture, about 8,000 to 12,000 years ago. आज से 8,000 और 12,000 साल पहले the size of population was small, roughly 8 million. कितने केवल थे? 8 मिलियन लोग थे. In the first century AD it was below 300 millions. The expanding birth rate during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. 16th and 17th century में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट रहा है वो बहुत ही तेज रहा. At the dawn of industrial revolution, the world population was 550 million. World population exploded in the 18th century. जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो रफ्तार जो थी वो 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा थी. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट achieved so far helped in the reduction of birth rate and provided a stage for accelerated population growth. अब हम टेबल देखते हैं ध्यान से. डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर 12,000 years बिफोर प्रेजेंट 0.2 बिलियन. बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम बात करते हैं 0.5 मिलियन, 1600, 1700, 1800, 1900 and 2000 present. See how population growth is more. 1830 तक ओनली 1 बिलियन. फिर 2 बिलियन होने में इसको लगभग 100 साल लगे. 1 से 2 बिलियन होने में 100 ईयर्स लगे. फिर 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में ओनली 30 ईयर्स लगे. फिर हम देखते हैं 2 से 3 30 ईयर्स एंड 3 से 4 में केवल 15 ईयर्स. फिर 4 से 5 में 12 ईयर्स. 5 से 6 में 12 ईयर्स और 6 से 7 और 8 जाने में अभी आंकड़े आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कितनी तेजी से बढ़ा. उसका धीरे धीरे कैसे रहा. एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटाइजेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन 60-50 to present, bird population in billion. See period 10,000 BC 5 million, 1650 AD 500 million, 1850 AD 1000 million, 1930 AD 2000 million, 1975 AD 400 million, 2012 AD 8 प्रोजेक्टेड फिगर. और अब ऊपर भी निकल गया है. इसमें 1500 ईयर लगे 5 मिलियन होने में, 5 से 500 मिलियन होने में. फिर इसमें 200 ईयर्स लगे, फिर 80 ईयर लगे, 45 लगे और फिर इसमें 37 ईयर्स लगे. ये हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ. द स्टीम इंजन replaced human and animal energy and also provided mechanized energy of water and wind. This increased agricultural and industrial population.
inoculation against epidemics and other communicable diseases, improvement in medical facilities and sanitation contributed to a rapid decline in death rate throughout the world. Human population increased more than 10 times in the past 500 years. In the 20th century itself, the population has increased 4 times. 20th century में population 4 गुना बढ़ी. Nearly 80 million people are added each year. लगभग हर साल 80 million people जो है जुड़ते हैं population के उसमें. Doubling time of world population. It took more than a million years for the human population to attain the 1 billion mark. But it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. टेबल हमने देख ली है. There is great variation among regions in doubling their population. Table 2.2 shows that developed countries are taking more time to double their population as compared to developing country. Most of the population growth is taking place in the developing world. यानी कि अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की तुलना करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, डेवलप्ड कंट्री की स्लो रेट से बढ़ रही है. ऐसा क्यों है? ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग. डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है. यू सी द टेबल 2.2. लाइबेरिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 8.2% है. सोमालिया 4.2%, यमन 3.7%, सऊदी अरबिया 3.4%, ओमान 3.3%. वही लाटविया सबसे लो है -1.5, इस्टोनिया -1.2, रशिया, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया -0.6, देन जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटाली, डेनमार्क -0.1 और डेनमार्क 0. देन स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ in different part of the world can be compared. The growth of population is low in developed countries as compared to developing countries. There is negative correlation between economic development and population growth. आप ये भी जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है नेगेटिव कोरिलेशन होता है. पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से नहीं होता है. Although the annual rate of population change 1.4% seem to be low, table 2.3, it is actually not so. This is because when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to large population change. क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जो है जरा सी भी वृद्धि जो होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में चेंज लाती है. ये मैप है आपका, इसको आप ध्यान से देखें. ओवर 100, ये देखो ये एरिया है यहाँ ओवर 100, 41 to 100 ये लेस शेडेड एरिया है. उसके बाद 31, 40, 21, 30 लेस देन 21 और ये पॉपुलेशन डिक्लाइन वाले एरिया है. ये पॉपुलेशन डिक्लाइन का इंडिकेटर है. ये पॉपुलेशन डिक्लाइन नो डेटा इसमें कि इसके नो डेटा. ये लेस देन 21 है, ये लेस देन 21 है तो नहीं दिखा रहा वहाँ पे कोई नो डेटा वहाँ पर नहीं है. इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ईच ईयर grow each year. The infant mortality rate may have increased as has the death rate during childbirth. The impact of population change. A small increase in population is desirable in a growing economy. However, population growth beyond a certain level lead to problem of these. The depletion of resources is the most serious. Population declines is also a matter of concern. It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. The deadly HIV/AIDS epidemics in Africa and some part of Commonwealth of
independent states CIS and Asia have pushed up death rate and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. The doubling story, it will take 36 years. The annual population growth rate in India is 1.9%. At this rate, India population of over 1 billion will double in 36 years. Some developed countries will take 318 years to doubling their population, whereas some countries still do not show symptom of doubling their population. इंडिया की पॉपुलेशन को 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में लगभग 36 ईयर्स लगेंगे, जबकि बाकी डेवलप्ड कंट्री को 318 साल लगेंगे। आप कल्पना कर सकते हो। देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन हो गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area. This is the theory which gives the detail of population of any area. In this theory, 3 stages are there. The theory tells us about the population of any region changes from high birth and high death to low birth to low death as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literacy society. The theory tells us that population of any region changes from high birth rate and high death rate to low birth and low death as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society. These changes occur in stages which are collectively known as demographic cycle. जैसे रूरल एग्रेरियन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अर्बन इंडस्ट्रियल। पहले अर्लियर टाइम में ज्यादातर कंट्रीज एग्रीकल्चरल कंट्रीज हुआ करती थी, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अर्बन इंडस्ट्रियल कंट्री बनी, तो पॉपुलेशन जो है रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ी, तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। The figure 2.5 explain the 3-stage model of demographic transition theory. स्टेज फर्स्ट, इसमें CBR, CDR, प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जाम्पल। स्टेज फर्स्ट में इस समय कौन देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स। और सेकंड स्टेज में नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों हैं। पेरू, श्रीलंका, केन्या, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज लो फ्लक्चुएटिंग, कनाडा, जापान एंड USA। यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेज है हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है उसमें फर्टिलिटी रेट हाई होता है, मोर्टेलिटी रेट भी हाई होता है, हाई डेथ, हाई बर्थ रेट। People reproduce more and compensate for the death due to epidemics and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture where large families are an asset. Life expectancy is low. People are mostly illiterate and have low level of technology. 200 years ago, all the countries of the world were in this स्टेज। आज से 200 साल पहले दुनिया के सभी देश जो थे इसी स्टेज में थे। डेथ रेट हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो थी और लोग जो है एग्रीकल्चरल वर्क में लगे हुए थे, है ना, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे। धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस हुआ। अब फर्टिलिटी 200 ईयर्स हुआ। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की वो कहती है
कि इसमें फर्टिलिटी हाई रहती है बट डिक्लाइन विद टाइम, लेकिन कुछ समय बाद ये धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने लगती है, एजुकेशन मिलती है, लोग एजुकेट होते होते हैं, जॉब करने लगते हैं, डेवलपमेंट होता है। तो पहले शुरू में अर्लियर टाइम में पॉपुलेशन जो है ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम रहती है। दिस इज अकम्पनीड बाई रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, धीरे धीरे मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। इम्प्रूवमेंट इन sanitation and health condition lead to the decline in mortality. Because of this gap, the net addition to population is high. यहाँ क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई बनी रहती है और डेथ रेट कम हो जाती है, इसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज में क्या होता है हम देखते हैं। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कम कंसिडरेबली, इसमें दोनों में ही बर्थ रेट और डेथ रेट जो है कम हो जाती है। द पॉपुलेशन इज अर्लियर स्टेबल और ग्रो स्लोली, द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज, लिटरेट एंड एज हाई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड deliberately control the family size. They know how and deliberately control the family size. तो थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं, और इसके बाद ये एक रीजन होता है, लोग अर्बनाइज हो जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है जिसमें वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के तरीके जानते हैं, और पॉपुलेशन कम होती है। ये तीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये साइकिल है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप ध्यान रखना है, डेथ रेट ज्यादा होता है, बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, स्लोली बढ़ती है, लोग एग्रेरियन होते हैं, गांव ग्रामीण जीवन में लोग रहते हैं। आज से 200 साल पहले दुनिया के सभी देश इसी कंडीशन में थे। फिर सेकेंड स्टेज में डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट हाई बना रहता है, तो पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसमें लोग जो है ग्रामीण से शहरों में आते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, हेल्थ फैसिलिटी होती हैं, तो मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन कर जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बर्थ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं, पॉपुलेशन जो है स्थिर हो जाती है, लोग लिटरेट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल उनके पास ज्ञान होता है, दे न्यू ऑल द थिंग्स हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो ये हमारी तीन थ्योरी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो आपको अभी से याद कर लेनी है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अभी आप जानते हैं, फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग or preventing the birth of children. Access to family planning services is a significant factor in limiting population growth and improving women's health. Propaganda, free availability of contraceptive and tax disincentive incentives for large families are some of the measures which can help population control. यहाँ पर write some measure of population control, you have to learn it very well. थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी, थॉमस माल्थस ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, स्टेटेड दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, कि पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि फूड सप्लाई जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। यानी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन द पॉपुलेशन क्रैश caused by famine, disaster and war. The preventive checks are better than the physical checks. For the sustainability of our resources, the world will have to control the rapid population increase. उन्होंने कहा था कि दुनिया को पॉपुलेशन इंक्रीज को कम करना है, नहीं तो ये पॉपुलेशन क्रैश का कारण बनेगा, या फेमाइन का कारण बनेगा, या बाढ़ का कारण बनेगा। इस प्रकार से बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, और इसके कुछ एमसीक्यू हैं जिसको आप कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें आपका अफ्रीका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, द अटाकामा, इक्वेटोरियल रीजन, साउथ ईस्ट एशिया। ये तीन आपने देखे होंगे, अगर मैप ध्यान से देखा होगा तो आपका जो स्पार्स एरिया नहीं, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया इसका आंसर है।
साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, इनमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? वाटर शॉर्टेज ये पुश फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पुश फैक्टर है, एपेडमिक भी पुश फैक्टर है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये पुल फैक्टर है, ये खींचने वाला। मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी ये पुल फैक्टर में आता है, ये आपका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 times during the past 500 years. Nearly 80 million people are added to the world population each year. It took 100 years for the population to rise from 5 billion to 6 billion. Population growth is high in the first stage of demographic transition. तो इसमें जो है ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। It took 100 years for the population to rise from 5 billion to 6 billion। अगर आपने ध्यान से अगर टेबल देखी होगी तो 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में केवल और केवल जो लगे थे वो 12 साल लगे थे। तो ये आपके आंसर हैं, ये आपको क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन कर लेने हैं। और इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।